you. Thank you. Okay, अगर आप इस सेशन का मजा लेना चाहते हैं तो मोबाइल. Thank you so very much for accepting our invitation and being here. Let's give her a good round of applause. I can see everyone is smiling like, yeah, that's it, yeah. Thank you for having invited me the second year in a row, and I'm glad I could be here this year. There's also a special reason because Prakash has always been an enigma for me. You know, I was doing advertising and he was the pop of advertising. He still is, even though he's not directing as many ad films by choice because he's busy skydiving. No, it's not scuba diving, sorry. But I worked with him on one ad film. I have to tell you about my experience before we start. You know, he just kept bouncing a ball off the wall while directing us. And I was like, why is he not paying attention? Am I not good enough? But that's Prakash for you because he could do, you know, so many different things. And I guess there is, his mind works at various levels. So he had answers to all the questions. The shoot went off absolutely fine. He doesn't even remember the ad film I've done with him, so never mind. I can see that look on your face, but I remember it. It was for the 2-minute. It was for some small, I don't think they showed it too much, but I was damn thrilled I worked with him. And I haven't had the opportunity to work with him since, but when he called me, I said, I'm going to be there. There's no way I'm going to miss this. So. Thank you, lovely. Let's give it to Balan sir. Please. Okay, we have done this once before. Yes. आँख में ये खुजली कब से? I think तो हिंदी में कहूँ कि अंग्रेजी में मैं 8 साल की थी नहीं सॉरी मैं 8 साल की थी and 1, 2, 3 रिलीज हुआ था. अच्छा माधुरी दीक्षित and I said, oh my god, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ literally. And I just मेरी बहन के पास एक ब्राउन कलर का सिल्क स्कर्ट था जिससे वो नफरत करती थी, तो मैं वो अपने बाल पे मतलब सिर पे लगा लेती थी और जैसे माधुरी ने वो ट्विस्ट किया हुआ दुपट्टा पहना था जो भी हेडगियर था उसके तरह मैं पहन लेती थी स्कर्ट और आईने के सामने घंटों नाचती रहती because I was convinced that I was junior Madhuri Dixit. So that's how it all started. तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि हाँ ठीक है हर बच्चा you know at some point like he said wants to be an actor, so कौन सी बड़ी बात है ठीक है. But this पहले तो लगा कि अच्छा थोड़ा है फिर और बढ़ा कि एक वक्त के बाद लगा कि अगर मैं इसके बारे में कुछ ना करूं तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में. That's when I think I was around 9, 10 when I realized that this is what I want to do. Maybe even 11, by which time there was no doubt in my mind that this was not a passing phase. That this itch had taken over and I had to do something about it. Because I think, you know, all of us have some itch or the other, but you have to nurture it. कहते हैं ना, कभी-कभी खुजाओ तो ज़्यादा खुजली होने लगती है. Okay, we all know that we have read about you. I think so. I don't know of. So how did you survive that? And like nothing happened, and you were in Hindi films after that, and it's a long period. Yeah. So you know, I did Hum Panch in 1996, and I started work on Parinita in 2004. That's 8 years. In between which I graduated from St. Xavier's. I did my BA and then went on to do my MA at Kalina University because I said और कुछ नहीं तो पढ़ाई तो you know कहीं कुछ job तो मिल जाएगा. Because my parents had said graduation is like. Can I turn a little because I feel I'm turning my back towards them. They're all like okay, fine. They're all Vidya Dinana Chauhan for 5 minutes now. So I kept studying, but South में मैंने एक मलयालम फिल्म की. I think शायद काफी
लोग जानते भी होंगे अगर कहीं पढ़ा हो तो I did a Malayalam film with the Mohanlal and a director who's very well established, Kamal. They've done 8 films together. सारे के सारे हिट थे. आठों फिल्म बहुत अच्छी चली थी. तो 9वीं फिल्म में मैं थी और फिर उनके बीच कुछ पंगा हो गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या हो सकता है जिसकी वजह से फिल्म बंद पड़ गई. So they blamed it on me. They called me jinx. Yeah. And हुआ ये कि I had been word of mouth काफी अच्छी थी मेरे ख्याल से after my first schedule on the film. तो तकरीबन 12 फिल्मों के लिए मैं कंफर्म की गई थी. You know, in 2000, no one used to sign contracts, at least not in the South. I don't know if the situation has changed now, but तो 12 की 12 फिल्मों से मैं धीरे धीरे फिर निकाली गई. बिकॉज सबको लगने लगा कि अच्छा अगर ये पेयरिंग में के बीच कुछ हो गया तो फिर शायद इस लड़की को छूना नहीं चाहिए. तो I slowly started getting news that I was being replaced in film after film, and it was heartbreaking. Tamil में film करने गई, one turned out to be a sex comedy, and I was extremely uncomfortable. मुझे ऐसा बताया नहीं गया था. कान बंद कर लो बच्चे. But you know, so I opted out of the film. Then I was doing another Tamil film, and you know, I got thrown out of that also. And I think because by then, this thing that I was jinx had begun to play on my mind. I felt कि अच्छा nothing's going to work for me. For 3 years, you won't believe it. तब तक advertising में ऐसा था कि मैं किसी video test के लिए गई तो लोग कहते थे यार ये आ गई अब इसको ही मिलना है. It had just become a thing, you know. I'd done so much advertising work. पर उस 3 साल के दौरान I got replaced even in ad films. Like I would get confirmed for an ad film and then at the last minute I'd get told, no, you know, either something or the other, the client wants someone else or the budget is not working out. I think because, you know, this fear, I really believe that fear is a self-fulfilling prophecy. The worst thoughts you put out into the universe invariably come true. Like my favorite is you always say, no, oh God, what if? And you always follow it up by a negative. What if I'm not successful? Try the reverse. Every time a negative thought crosses your mind, try saying, what if I am successful at what I'm doing? And trust me, it works like magic. Yeah? Thoughts, you know, reaches faster than the words. Absolutely, absolutely. मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ बहुत ज़रूरी. डायरेक्टर के साथ बैठती हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि you know कि किरदार और उसकी दुनिया कैसी है. ये बहुत ज़रूरी है. So I ask lots of questions. I ask stupid questions. Invariably, I come up with a birth date for the character, favorite colors, and all these things. What food does a person like? Then in conversations with the director, and so far I've only worked with male directors. That's hopefully going to change very soon. But every time I sat with the director, I'd ask him things like, okay, if there was so and so situation, how would this person react? Just so I understand the person better. That's what I do. Baki, There is no process. there is no process, and I'm not a trained actor. And the only thing I try not to do is to intellectualize the process. I think because कभी-कभी ना कुछ नहीं भी समझो तो छोड़ देना चाहिए. I feel over time I've realized वो बहुत हम लोग. I think some amount of distance always allows for spontaneity, for creativity. So I like to give that space between what I'm doing and me. Keep that little distance. Parinita, There's a message on the radio calling army personnel back to the front. And for some reason, वो sudden जब आपका ऐसे दिल बैठ जाता है ना, वो मैं नहीं express कर पा रही थी. Because firstly, at 19, all you're thinking is, who to kiss. And
concerned हूँ तो मैं बहुत मतलब I was really struggling, and at that time Namita and Shubir told me something that changed my perception on acting. And when they told me that, you know, acting is not just about having a nice face and about expressions, it's about feelings. What you feel is what you will be able to put out there. And importantly, they said, you know, acting के लिए कोई मतलब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी जीनी पड़ती है. आप पढ़ो, किताबें पढ़ो, गाना सुनो, हर तरह का म्यूजिक सुनो, थिएटर देखो, फिल्में देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, and there's no bigger training ground than life itself. I think that really changed the way I looked at acting, and I started doing that. You know, I started going for every play, watching every film festival में हो, theater में हो, गाना सुनने लगी, music concerts में जाने लगी, किताबें पढ़ने लगी, and it just opened up my mind, because it's not possible that you live every experience that you're going to portray on screen. But at least this is borrowed. The reference is from borrowed experience when you when you've read or seen it in another film or spoken to someone who's gone through something. And I think that, oh sorry, I've completely forgotten why I started saying all What are you talking about? We don't need to learn acting. Yeah. It's not मैं भावनाओं में बह गई. So I really think that it's not important to be trained in anything, but if you get a training, that can only accelerate the process. But I don't think it's absolutely essential. And though I will say that why I feel the school and college system is important is because that experience is very valuable, of just going into a classroom with other students, talking to teachers, and these days there are very innovative ways of teaching, you know, so that can open up your mind. When I tell my parents that, you know, I don't want to study anymore, I'll do it through correspondence, my parents would say, but you know, you can't go back to college life. You'll miss out on these precious years, you can work for the rest of your life. And I'm so grateful to them for they said that, you know, because I would say it's not what they teach you, but it's the experience of learning that is really precious. Thank you. चिड़िया का चल रहा है. कल रिलीज है ना? हाँ कल मामी में इसका वो हो गया, वर्ल्ड प्रीमियर हो गया. ग्रेट, कांट वेट टू वॉच इट. चलो रोल है. ओके विद्या जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं आप समिट सेशन के लिए, क्या कुछ है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ मुझसे बहुत बुलवाएंगे. पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका नाम है इच समिट.
मतलब हम सब में खुजली होती है ना कुछ करने की लाइफ में, उसी इच को, उसी खुजली के बारे में कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने उस इच को नर्चर किया और आगे बढ़े और लाइफ में कुछ किया, उसके बारे में है। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ सही किया है, इसीलिए मुझे इनवाइट किया है बात करने के लिए। बट आई थिंक द आइडिया इज ग्रेट। वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि वो सवाल करेंगे, मैं सिर्फ जवाब दूंगी। मैं कभी सवाल पूछती नहीं हूँ पहले, तो जो सवाल करेंगे उसके हिसाब से मैं जवाब दूंगी। पर आई गेस इट विल बी अबाउट माई जर्नी। यही कि हमेशा जो आपका दिल करे वही करिए, क्योंकि काफ़ी बार हम लाइफ में वो करते हैं जो हमें करना चाहिए, मतलब जो लोग हमसे कहते हैं, जो परिवार के लोग कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं या हमारे पार्टनर्स कहते हैं, पर आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक वो आपके दिल से ना निकले। और वो चाहे कितना भी हटके क्यों ना हो, अगर वो दिल से निकली आवाज होगी ना, तो आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपने एक करोड़ की हम पाँच की थी और उसके बाद आपको फिल्म एक्टर बनना था, वो जो इच की एक्टिंग की, उसके बहुत संघर्ष करना पड़ा। साउथ की फिल्मों में 12 फिल्मों में आपको रिजेक्ट किया गया, बहुत मुश्किल था आपके लिए। तो उसको अब उसके बारे में आप क्या सोचते हैं जब आप इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं? जब मैं उससे गुजर रही थी तो नहीं लगा कि ये स्ट्रगल है या कुछ, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं ठाना था कि मेरे लिए रास्ता बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं नॉन फिल्म परिवार से आती हूँ। यही दुआ करती थी अपने लिए कि मुझे मौका मिल जाए। तो छोटे से छोटा मौका जब मुझे मिलता तो मैं उससे अपना सब कुछ दे देती, क्योंकि मुझे लगता कि इसके बाद अगला मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, पर अगर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगी। तो मुझे याद है कि मैं FTI भी जाती थी, जो कुछ दोस्त थे, कुछ दोस्त नहीं भी थे, पर मुझे लगता था अच्छा अगर कुछ यहाँ सीखने को मिले तो ये, क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, तो मैं चली जाती हूँ, उनके लिए फिल्म कर लेती हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने आप को उस तरह से तैयार कर रही थी। तो आई थिंक I never looked at any opportunity as a small opportunity. मुझे लगता था यही मेरा magnum opus है, और इसी attitude से I think I kept moving forward. इस सबसे हटके एक सवाल, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि जो हमारा पायलट पकड़ा गया था पाकिस्तान में, अब उसे छोड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा गेस्चर दिखाया है इमरान खान ने। No, I'm very happy that Captain Abhinandan is going to come back home safe and sound, and I can only imagine what his family has gone through. We were all so anxious, so I can only imagine what the family must have been through. And I just hope and pray that somehow peace prevails, really, because an eye for an eye will turn the world blind. Thank you. Yeah, thank you very much. अब वहाँ मिलेंगे। विषय और प्लेटफॉर्म जैसे आप जानते ही हैं इसी का है, एंड प्रहलाद कक्कर स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रांडिंग के ज़रिए ये आज समिट रखा गया है। एंड आई थिंक ऐसे मंच बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जब बात करते हैं अगर मोटिवेशन की, और स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को मोटिवेट करना कि आपका इच जैसे ये है इसका नाम समिट का, लेकिन एक्चुअली मैं कहूँगी कि आपका पैशन क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सो आई थिंक दे बेसिकली गॉट दिस ट्रेंड सेटर्स काइंड ऑफ अ थिंग। हम गिन चुन के लोग जमा किए हैं प्रहलाद जी ने, कि हम आके मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को, इनकरेज करें, एंड just try to tell them that if we could do it, they can do it as well. Absolutely. Okay, what is your definition of success? Well, for me, success is a very, very different definition. I think it is, it definitely deals with dream big, because if you dream big and you have the sincerity to work hard towards your goal, you will achieve it definitely someday.
हम होंगे कामयाब एक दिन. And I do feel when you know, if you've given your 100% and you've given your best, it will come to you. No one can take it away from you. रवीना, आप खुद ट्रेंड सेटर हैं और आज उसी टॉपिक पर बात करने वाली हैं. क्या कहेंगे, क्या मेन जो लाइन होगी जो मोटिवेट करने वाली थी वो क्या होगी आपकी तरफ से? इस समय तो बहुत ही मोटिवेशन की ज़रूरत है. आई थिंक मोटिवेट करने वाली जो एक लाइन मैं समझती हूँ, जो मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं एंड आप में वो ज़ील है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, तो वो आपसे आपकी किस्मत कोई छीन के नहीं लेके जा सकता है. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ योर ओन विल, योर ओन इनर शक्ति दैट कैन मेक यू डू थिंग्स. एंड रवीना जी, जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्री में आपने एक ट्रेंड सेट किया कि आप टॉपिक किसी भी टॉपिक पर आती हैं सामने से दिल खोलकर बातें करती हो. वैसे ही और आपकी इंडस्ट्री के दोस्तों को कभी कभी वो उल्टा भी पड़ जाता है दिल खोल के बात करना. बट आई डू फील कि एज सिटीजन्स, जो हम लोग सिटीजन्स हैं, अगर हम ही आगे बढ़ के अगर हम सब चुप मार जाएं और सब अपने आप के ही बारे में सोचने लगें तो देश तो डूब जाएगा. सो आई फील कि स्पेशली सक्सेसफुल पीपल हु सोसाइटी हैज़ गिवन यू सो मच, आवर सोसाइटी, आवर पीपल, our citizens have given us everything what we are today. Our name, fame, everything is because of them. So what is the way that we can give back in return? So जितनी हमारी हैसियत है और जितना हम कर सकते हैं, उतना हम लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए हमारी सोसाइटी, हमारे देश को वापस देने में. रवीना, जैसे आपने देश की बात की और मोटिवेशन की बात की, तो आपने कहा कि इस वक्त हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है. ऐसी क्या बात है जो आप बोलते बोलते रुक गए और आप में नहीं गई? दिल दुखता है when you hear about war, and that is not the scenario that you want to give your children for the future, but there has to be war against terrorism. Terrorism has to stop because it's not a war between countries. That is very sad because there are good people everywhere in the world. You can't generalize and say ye bura hai wo acha hai, ye bura hai wo acha hai. So the thing is that, but terrorism is something very, very scary for our future generations, for our world, for the entire world, and for peace in this region. Terrorism has to be eliminated somehow. That is the saddest part of it all. एंड रवीना जी, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज आ रही है, जी. बहुत ही लोगों को पसंद भी आ रही है. आपकी भी वेब सीरीज आने वाली है, जी. हमें आप उसके बारे में बताइए कि क्या अपडेट है, कब तक ये अनाउंसमेंट? वैसे एक वेब सीरीज़ को मैंने ग्रीन सिग्नल तो किया है जहाँ आई एल बी वर्किंग इन, एंड बाकी 3 हैं जो विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम आरका एंड ए फिल्म्स ब्रांड. So we are working towards it. We just have to still get them on the floor. अभी बातें चल रही हैं, ये ऑलवेज प्री न्यूज़ आ जाती है, तो अब तक कुछ फाइनल नहीं है. बट द डे इट विल बी, आई विल प्राउडली से सो, बिकॉज दैट्स अ fantastic film and a very amazing brand to be associated with the KGF series. It's something which is really mind-blowing what they have done. And if I do say yes, I'll be proud to be associated with that brand. Thank you. Thank you, everybody. सर, तो कैसा था आपका सेशन? पहले तो ये जानना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बातें की सर, आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे. या तो सेशन जो था प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वो इसमें जब भी ऐसा कुछ होता है और सारे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलता है तो आप सीख के ज़्यादा निकलते हैं. यहाँ भी मेरे पास सीखने को मिला और आई थिंक जो अगला पड़ाव है हमारे देश के आगे वो यही है कि इतने यूथ हैं, क्या वो अपने अंदर झांक के कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे वो उनके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है. अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता, उसके अंदर आपके अंदर का पैशन क्या है वो उसको, एंड schools like this help you find that. तो जैसा आपने बोला आपको भी कुछ सीखने मिला,
बेसिकली जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स की और यूथ की, अगर आप जब भी उनको मिलते हैं, वो कमरे में इतनी एनर्जी है, वो थोड़ा आप पे रब ऑफ करती, तो वो एनर्जी मैं आज वापस लेके जा रहा हूँ। बाकी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट ऑफ द रिकॉर्ड जो बाहर जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं, तो उनके जो सवाल होते हैं वो बड़े ही दिल से निकलते हैं, और जब आप उन सवालों के बारे में खुद सोचते हैं तो एक ऐसा आप रीविजिट करते हैं अपने आप, अपने अंदर को, कि कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि लाइफ हमेशा वहीं से शुरू होती है जब आप 17, 18, 19 साल के होते हैं, आपका करियर बनना शुरू होता है, आप सोचना शुरू करते हो। I don't think there is anything called success or failure as such, क्योंकि हर चीज़ को आप यूनिलैटरली नहीं देख सकते, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। So I think success and failure are twins and they go hand in hand. My definition of success is you should give yourself permission to fail. Essentially, there is a lot of noise around you, कि ऐसा करो, वैसा करो, ये कोर्स करो, ये डिग्री लो, इससे ये होगा, ये सिक्योरिटी होगी, वो सब सुनना बंद कीजिए, और जो आपके अंदर की आवाज़ है अंदरूनी, उसको सुनिए। इज़ वन लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप उसके कोई आपको माइलस्टोन मनाने पड़ेंगे कि मैं जब 25 साल की होंगी तो यहाँ पहुँचूँगी, 27 में यहाँ, 30 में इधर, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, बहुत लोगों को मिलता हूँ, तो जो आपको ऐसा समझाया जाता है कि ये टारगेट्स हैं, वो आई थिंक यू डोंट हैव टू टेक दैट सीरियसली, यू हैव टू टेक योरसेल्फ सीरियस। जब इस तरीके का जब कुछ सेशन होता है, जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आपको कोई आपका कोई ऐसा कोई टाइम याद आता है जब आप कभी मिले हो, जब किसी ने कोई आपको कोई दे दिया, कोई एडवाइस? हाँ, 100%, हर समय, और ऐसा टाइम याद नहीं आता, वो हर रोज़ हम कई लोगों से मिलते हैं, और ख़ास करके जिस लाइन ऑफ वर्क में मैं हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, तो बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, और हम कई बार सुनना बंद कर देते हैं, we stop hearing, we just listen. तो वो एक कान से बात आके दूसरे कान से निकल जाती है, तो अगर हम ध्यान से सुने आगे वाला कहना क्या चाह रहा है, तो शायद और समझ में आएगा। सर, आपकी फिल्म आ रही है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, क्या उसके बारे में इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स से? हाँ, उसका आज ट्रेलर दिखाया गया और उसके बारे में बातें हुई, लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। It's a very challenging subject. मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर takes up the issue of women's safety. It talks about rape as a social evil, talks about it and makes you feel about it. It's not about justice for rape or revenge for rape, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारी जो मानसिकता है women को लेकर, उसको कहीं उस बारे में सोचने की, उसको बदलने की एक कोशिश है इस फिल्म में, जिसमें एक 8 साल का बच्चा देश के प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि मेरी माँ के साथ बहुत गंदी बात हुई है, अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? सर, आपने फिल्म बनाई है मेरे प्राइम मिनिस्टर, और इस वक्त जो देश में हालात है उसमें आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहने वाला कुछ नहीं हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ। आई थिंक दिस इज़ सिचुएशन वेयर our country is going through, or we have to stand behind our country, the people of this country and the armed forces. इसमें हम जितना अपनी wisdom झाड़ेंगे और उसमें confusion ही पैदा होगा. We are not qualified to speak on this. We don't have the sensitivity to speak or the bandwidth to talk about it. Right now, it should be and forever. It's not something which, as a normal citizen of India, I am qualified. तूफान पे पहुंच गया, हाँ, कहाँ से कहाँ जंप आ रहा है। शूटिंग शुरू करेंगे अगस्त में, यही अपडेट है तूफान के बारे में, और बहुत अच्छी फीलिंग है कि भाग मिल्खा भाग के बाद अभी फरहान के साथ फिर पार्टनरशिप हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है।
हाँ, सवाल क्या है आपका? ये उनके साथ में ये फिल्म के इस प्रोजेक्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो कहानी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम दोनों की हमेशा चाह थी हम फिर से काम करें, कोलैबोरेट करें लाइफ में आगे बढ़ के। बट जब ये कहानी सुनी हम दोनों ने, अंजुम राजा बली की कहानी, तो कहानी ने बहुत एक्साइट किया हमें और इमीडिएटली वी थॉट हमें ये करनी चाहिए। सर कभी ऐसा हुआ है क्योंकि वो भी डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं, आप भी डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फिल्म, कभी कोई आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच? या आप लोग शेयर करते हैं किस तरह से? बिल्कुल शेयर करते हैं। मैं तो सारे आइडियाज़ सबके साथ शेयर करते हैं। और फिल्म मेकिंग इज़ अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट। आप म्यूज़िक कर रहे हैं ए आर रहमान के साथ, शंकर एहसान रॉय के साथ, तो उन पे छोड़ना चाहिए उनका काम। आपके गाने गुलजार लिख रहे हैं, अभी तूफान के लिए जावेद अख्तर लिख रहे हैं, तो उन पे उनका काम छोड़ना चाहिए। बट फिर भी कोलैबोरेशन है, वो मेरी सुनते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। ऐसे ही जब भी आप कैमरामैन के साथ, बड़े बड़े कैमरामैन के साथ मेरा काम हुआ है, विनोद प्रधान, अशोक मेहता, एक्टर्स अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फरहान अख्तर, वहीदा रहमान, ओमपुरी, इन सब से मैं बहुत सीखा ही हूँ। और हमेशा एक लेन देन चलता रहता है। इट्स हाउ लाइफ वर्क्स लाइक दैट, फैमिली वर्क्स लाइक दैट। Movie making or making big bucks at the box Sorry? office? Movie making or making big bucks at the box office? What's your major agenda? I find it as a very boring question, that movie making or making money at the box office. Because if only making money is the agenda of your life, then it's a very boring life. Then anybody, any business, any work, if you're saying कि मुझे सिर्फ पैसा बनाना है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बोरिंग काम है। Agree, disagree, yes, your choice, but you asked me, I told you. यार I read their whole thing and उसमें कुछ एडिसन एंड सब के बारे में बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगा, मुझे पता नहीं मुझे क्यों बुलाया है। सो फिल्म मेकर एंड फिल्म रिलेटेड कुछ बातें होंगी और लाइफ स्टोरी, दैट्स इट। क्या क्या किस तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है अंदर एंड यंगस्टर्स हैं, उनको क्या एंटरप्रेन्योरशिप उसके ऊपर बात करने वाली है, क्या टिप्स और एडवाइस देना चाहेंगे? See, in filmmaking, there are no actually tips in terms of people make their own tips. No one can teach filmmaking to anybody. क्योंकि acting और direction कोई सिखा नहीं सकता. It's there inside you or it's not there inside you. It's just that you need to tap the right points and decide where it is taking you. So that's the thing. And if we talk about something and kids get influenced by that, nothing like it. And what is your definition of success? Success का कोई definition नहीं है यार. It's success ज़्यादा सर पे चढ़ जाए तो भी खराब है और ना है तो भी खराब है. So one film works and I'm sitting right in front of you guys. आपको बधाई हो giving this interview. So that's success, and success should be under control. जी, और ऐसी कौन कौन सी स्टोरीज आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी जो हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सिनेमा में अप्रिशिएट की जाएंगे, समय बधाई मिलेगी? और अभी जो मैं नेक्स्ट फिल्म पे काम कर रहा हूँ वो फुटबॉल रिलेटेड फिल्म है. इट्स अ पीरियड फिल्म. 1952 टू 1962 का एरा दिखा रहे हैं हम लोग. और मिस्टर अजय देवगन इज प्लेइंग मिस्टर सईद अब्दुल रहीम्स पार्ट. Mr. Saeed Abdul Rahim was our Indian coach at that time, football coach थे. तो उससे रिलेटेड फिल्म है जो अभी 2-3 महीने में ऑन फ्लोर जा रही है. एंड जो यूथ आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, आपकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज जाएगा आपकी तरफ से? मैसेज यही जाएगा दैट कीप लुकिंग फॉर द गुड फिल्म्स एंड अच्छा समय चल रहा है फिल्मों के लिए, बिकॉज अच्छी नई नई कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं. अनकन्वेंशनल कहानियाँ सुनने और देखने को मिल रही हैं. सो एंड आई एम हैप्पी दैट वो फिल्में चल रही हैं, तो लोग जाके देख रहे हैं तभी चल रही हैं. सो मैसेज इनफैक्ट उनसे हमको मैसेज मिल रहा है दैट की कीप मेकिंग गुड फिल्म्स एंड गुड स्टोरीज एंड न्यू काइंड ऑफ स्टोरीज. एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहें कन्वर्सेशन? So how has your experience been about this entire summit? What do you think
campus, and I'm like, I asked that, is this happening only for like once a year, or so experience is already good. Let's see what happens inside now, because uh, standing behind the camera is different, and standing in front of many people, it is different. So I'm a bit nervous. Let's see what happens. Yeah. Sorry? I don't carry my card, so yeah. हाँ. ये दरवाज़ा बंद कर दो. यार मुझे तो लोगों से पूछना पड़ेगा उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. मुझे बहुत मज़ा आया. वो सब बातें जो बहुत पुरानी बातें हो गई थी उनको दोहरा के वो टाइम शायद मैंने फिर से जी लिया कुछ, और बहुत मज़ा आया मेरे को, बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड पीपल वर रिसेप्टिव. लोग जब रिएक्शन देते हैं तो और भी अच्छा लगता है. सो आई रियली लाइक्ड इट. कैसे देखते हैं आप इस समिट को एंड ओवरऑल? और ज़्यादा होना चाहिए, और अच्छी बात है. साल में 2 दफ़ा होना चाहिए, 3 दफ़ा होना चाहिए, और भी ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे.